Dear student, in this lecture we will discuss presentation of data, yani how to present a data. So basically there are three type of data. We will discuss one by one. Presentation of data. Collected data are usually available in a form which is not easy to understand. As a first step, we may arrange the data into classes or categories having similar characteristic. जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो रफ डेटा हमारे पास होता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट डेटा. तो हमें अरेंज करना है उस डेटा को क्लासेस में या कैटेगरीज में, वो ग्रुप के शक्ल में, यानी वो जिसके सेम प्रॉपर्टीज़ है उसको एक ग्रुप में क्लास में कर ले, और वो जिसके अलग प्रॉपर्टीज़ है उसको अलग ग्रुप में कर ले, एंड सो ऑन. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into classes or categories according to some common characteristic, ये characteristic की बुनियाद पे हम करते हैं. present in the data is called classification, और इसको हम classification कहते हैं. There are four important bases for classification of data. These bases are: first one, qualitative, in which data are classified by attributes, for example marital status, sex, religion, and so on. Second, quantitative, in which data are classified by quantitative characteristics, for example weights, heights, temperature, income, and so on. Third number, geographical, in which data are classified by geographical region or location. For example, the population of a country may be classified by provinces, districts, tehsil, towns, and so on. 4 number, chronological, in which data are arranged by their time of occurrence. An arrangement of data by their time of occurrence is called a time series. Data may be classified by 1, 2, 3 or more characteristics at a time. When data are classified by one characteristic, classification is said to be one way. For example, the population of a country may be classified by religion as Muslim, Christian, and Hindus, and so on. When we classify data by two characteristics at a time, classification is said to be two-way. Classification will be three-way when data are classified by three characteristics. Data classified by many characteristics give rise to a many-way classification. मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हम डेटा को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ 3 मेथड है हम यूज़ करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन, सेकंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एंड द थर्ड वन इज़ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन. इसको समरी स्टैटिस्टिक भी कहते हैं. टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू क्लासेस or categories according to some common characteristic present in the data is called classification. When the data have been classified, it may be arranged in the form of table so that the numerical fact can be readily compared. A table is a rectangular arrangement of data into columns and rows. The process of arranging data in tabular form is called tabulation, जो कि हम इस मेथड में एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं. डेटा को हम एक टेबल फॉर्म का शक्ल देते हैं और उसमें क्लासिफिकेशन यानी क्लासेस डिवाइड करते हैं. एक अलग क्लास मतलब फर्स्ट एज वाला क्लास, हाइट वाला क्लास, यानी अलग अलग क्लासेस हम अलग अलग लिखते हैं. टेबुलर प्रेजेंटेशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये एक टेबल है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. Title, answering what, where, when. So name of variable, unit of variable, और इसके नीचे सेकंड रो में कैटेगरीज और इसके नीचे टोटल. सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी है और थर्ड कॉलम में परसेंट है.
The following are the weights in kg of 25 college students. ये हमारे पास 25 कॉलेज के स्टूडेंट है और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है ये वेट डिनोट करता है, यानी 61 वेट है एक स्टूडेंट का, 60 किसी और स्टूडेंट का, एंड सो ऑन। और ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 25 स्टूडेंट हैं। तो हम किस तरह इसको क्लासिफाइड करेंगे? क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह होगा, वेट्स इन किलोग्राम, ये हमने लिख लिया। अब 60 भी है इसमें, 61 भी है, 62 भी है, 63 भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और वेट नहीं है, आप देख सकते हैं। सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट इस तरह है जिसका वेट कितना है? 60 है। 9 स्टूडेंट है जिसका वेट जो है वो 61 है, और 2 स्टूडेंट इस तरह है जिसका वेट जो है वो 62 है, और 8 स्टूडेंट इस तरह है जिसके वेट्स जो है वो 63 है। और लास्ट में परसेंटेज जो आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 60, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। सिमिलरली ये बाकी जो भी है ये आप परसेंटेज निकाल लें, ये वीडियो आ जाएगा। द फॉलोइंग आर द एजेस इन ईयर्स ऑफ 25 पर्सन्स। तो ये हमारे पास एजेस है 25 पर्सन के, तो ये हम किस तरह क्लासिफिकेशन करेंगे? एज लिख ले ईयर्स में। सो 25 से लेकर 30 तक एज वाला कितने स्टूडेंट है? 6 पर्सन है, और इसका परसेंटेज जो है वो 24 है। 30 से 40 एज वाला पर्सन वो 9 है। 40 से 50 पर्सन एज वाला पर्सन जो है वो 3 है, और इसका परसेंटेज 12 है। 50 से 60 एज वाले पर्सन जो है वो 7 है, और इसका जो परसेंटेज है वो 28 है। इसको सारे जमा कर ले तो ये हमारे पास 100 आ जाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हम इस तरह करेंगे। थैंक यू।